तो देखिए, आपको बता दें कि भारत में दूतावास बंद किया जाए और जिस तरीके से राजनयिक वहां पर है उन्हें वापस बुलाया जाए और जो संधि है पानी को लेकर उसको पूरी तरीके से बंद किया जाए और ऐसे तमाम पहलू जिनको लेकर चर्चा हुई है और सीधे तौर पर अटारी बॉर्डर पर जिस तरीके से अब ये समारोह होता था उस पर पूरे तरीके से रोक लगाने की भी इसमें बात की गई है। तो इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम ऐसे पहलू जिनको लेकर चर्चा की गई, इस बैठक में 2.5 घंटे ये बैठक चली। External affairs. I would also like to let you know that we have pressing engagements following this press briefing, so we'll not be in a position to take questions from you. We can do that subsequently. With that, I give the floor to Foreign Secretary. Sir, over to you. Thank you, Randir. Good evening. Thank you all for your patience and for joining at this relatively late hour. I have some prepared remarks that I'll share with you, and as Randir said, due to some preoccupations, will not be able to take questions tonight. The Cabinet Committee on Security met this evening under the chairmanship of the Honorable Prime Minister. The CCS was briefed in detail on the terrorist attack on 22nd April 2025 in Pahalgam in Jammu and Kashmir, in which 25 Indians and 1 Nepali citizen were killed. A number of others sustained injuries. The CCS condemned the attack in the strongest terms and expressed its deepest condolences to the families of the victims and hoped for the early recovery of the injured. Strong expressions of support and solidarity have been received from many governments around the world, which have unequivocally condemned this terror attack. The CCS recorded its appreciation for such sentiments, which reflect zero tolerance for terrorism. In the briefing to the CCS, the cross-border linkages of the terrorist attack were brought out. It was noted that this attack came in the wake of the successful holding of the elections in the Union Territory and its steady progress towards economic growth and development. Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. तो देखिए, भारत में पाकिस्तानी दूतावास बंद करने की बात यहां पर की गई है। 48 घंटे में पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़ दे, अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट बंद। इसके अलावा जो स्थानीय स्लीपर सेल है उसकी मदद को लेकर भी सारे जो पाकिस्तानी हैं फिलहाल वो भारत छोड़े और भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय यहां पर दिया गया है। पाकिस्तान से सिंधु जल समझौता जो है वो खत्म कर दिया है। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भारतीय वीजा पूरे तरीके से बंद कर दिया है। अटारी बॉर्डर बंद किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि भारत में पाकिस्तान जो दूतावास है उसको भी बंद कर दिया है। तो कुल मिलाकर देखिए, भारत की तरफ से ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि इन सब पर पूरे तरीके से रोक। और हमारी सहयोगी समीक्षा हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। समीक्षा, देखिए, अगर बात करें, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने पहल की है कि चाहे भारतीय वीजा हो या फिर जो भारत में रह रहे हैं 48 घंटे का समय है कि वो इस दौरान भारत छोड़कर पाकिस्तान चले जाएं और सिंधु जल समझौता जिसका जिक्र अब से थोड़ी देर पहले भी कर रहे थे, एक बड़ा संकट पाकिस्तान पर छा जाएगा। तो भारत की तरफ से ये पहल, देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का एक सब संगठन जिसको बोले, TRF ने इस पूरे कायराना हमले की जिम्मेदारी है जो पहलगाम में आपको इसमें 26 भारतीयों की दर्दनाक मौत हो गई। इसको लेकर के भारत में बहुत ज्यादा रोष है, आक्रोश है। इसको लेकर के पाकिस्तान के साथ कई अहम समझौते हैं जिनको
फिलहाल कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया गया है एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से, कि उनको रद्द कर दिया गया, जिसमें सिंधु जल समझौता काफी महत्वपूर्ण समझौता है, जिसे खत्म कर दिया है। इसके साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भारतीय वीजा बंद कर दिया है, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया है, यानी कि पाकिस्तान और भारत में जो भी टीटीज थी, जो भी समझौते थे, जो भी आवाजाही के मार्ग थे, सभी को भारत ने एक कड़ा कदम लेने के बाद बंद कर दिया है। अभी भी 2.5 घंटे तक सीसीएस की मीटिंग चली है। वहीं एमईए भारत में पाकिस्तान का दूतावास भी बंद कर दिया गया। 48 घंटे में पाकिस्तानी नागरिकों को कहा गया है कि भारत को छोड़ दे। भारत इस हमले से इतना ज्यादा गुस्साया हुआ है कि जिस तरह से 5 से 6 आतंकी सेना की वर्दी पहन करके घुसे, पाकिस्तान के संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने उनको शरण दी, जिस तरह से ये पूरा हमला हुआ, इसको लेकर के भारत ने काफी कड़ा जो है वो कदम उठाया है। इसके साथ ही अटारी बॉर्डर तमाम चेक पोस्ट भी बंद कर दिए गए। बिल्कुल समीक्षा, मैं वापस लौटूंगी आपके पास में, और इस दौरान एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। दरअसल हिंदी खबर पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, और आपको बता दें कि कल केंद्र सरकार ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक, और रक्षा मंत्री के नेतृत्व में ये बैठक होगी। तो कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, और सर्वदलीय बैठक में अगले एक्शन पर मंथन होगा। तो हिंदी खबर पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कल केंद्र सरकार ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी समीक्षा हमारे साथ में लगातार बनी हुई है। समीक्षा, देखिए लगातार मांग भी की जा रही थी कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। अब आखिरकार कल ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, और यहाँ पर मंथन किया जाएगा कि आगे आखिरकार क्या कड़ा एक्शन लिया जाए। देखिए, सर्वदलीय बैठक है उसको बुलाया गया है, और कहा जा रहा है कि ये जो समय है वो सबको एकजुट होने का है और एक बेहतर रणनीति बनाने का है। इसीलिए राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक है उसका आयोजन किया जाएगा। काफी लंबे समय से इस बैठक की मांग भी की जा रही थी, उसको पूरा कर लिया गया है। अब ये कल बैठक का आयोजन किया जाएगा, और बात करें तो राजनाथ सिंह इसकी अध्यक्षता करेंगे। और पहलगांव में जो हमला हुआ है को किस तरह से आगे एग्जीक्यूट करना है, कि दुश्मन को किस तरह कड़ा जवाब की तरफ से क्या कड़े कदम होंगे, क्या कड़े एक्शन भारत आतंक के खिलाफ लेगा, उन सब की चर्चा इसमें होनी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समीक्षा चौधरी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब ने